We will start in 10 minutes because all the students are coming. So kindly wait for 10 minutes, please. देखो मेरी पन्नी लेती है। I will request to all kindly off your mic, please. Kindly tell the other student to join, please. Those who are not present here. Devesh Kushwaha. Devesh Kushwaha. आ रहे हैं।
Now we are going to start the meeting or the induction program of diploma first year. In today's program, we are going to introduce to you to our college and faculty and other things. So please pay attention toward the presentation and the things that sir are going to tell you. Okay.
Now we are going to start our induction program through this online meeting. Kindly pay attention. A very good morning to Honorable Chairman Sir, Mr. Bhan Singh Sir, Vice Chairman Dr. Anuj Singh Sir, authorities Mr. Sunil Tiwari Sir and Mr. Vipin Singh Sir, Principal Dr. Nilesh Kumar Trivedi Sir, and our today's guest, Dr. J. Shi Shah, Director of PG Tech Research Institute, Indore, and speaker Mr. Deepak Parmar, sir, from Research Institute, Indore, as well. My fellow faculty members and amicable students, we all are present here for induction program of DFAM student of batch 2021 to 2023 through this online program. It gives me immense pleasure to extend my warm greeting to the student and to all the eminent personalities present here on the behalf of Nand Kishore College of Pharmacy and Nand Groups. It is my pleasure to welcome you all. Now, I would like to start the program through an online presentation in order to introduce the authorities and faculties and facilities of Nand Kishore College of Pharmacy to students of DPharm first year. As the slide visible on your screen, the first slide is showing the Nand Kishore College of Pharmacy approved by AICTE and PCI New Delhi and affiliated to AKTU and BTE Lucknow, which offers the courses of B Farm and D Farm with best possible facilities and faculties. Next, these are the other UG and PG courses offered by the Nand Group through Nand Kishore Singh PG College, which offered the courses of BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, LLB, B.Ed, BTC, ITI. Now, through this slide, I would like to introduce you all to our chairman, sir, and vice chairman. Our chairman is Mr. Bhan Singh, sir, and vice chairman is Dr. Anuj Singh, sir. They started these institutions with the tagline of Vidya Dadati Vinayam, that is, education provide humbleness. Now, next is our campus coordinator, uh, campus coordinator, who are Mr. Sunil Tiwari sir and Mr. Vipin Singh sir. They look after our campus and provide us all the possible and best facilities which help us to program or to function smooth the functioning of colleges. Next, the next is our the vision and mission of Nand Group. The vision of Nand Group is that we aim to give the threefold education where moral education forms the nucleus covered with modern and scientific knowledge, meeting the needs of technology era resulting in holistic development. दैट इज इसका मतलब ये है कि हमारा विजन ये था मीन्स कि ये कॉलेजेस शुरू करने का पर्पस ये था कि हम बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें जो कि उन्हें तीन तरीकों से एक्सेल करने में हेल्प करे। पहला, एजुकेशन विथ मॉडर्न एंड साइंटिफिक नॉलेज, मतलब हम आधुनिक चीज़ों से उन्हें अवगत करवा सकें जिससे कि उन्हें हम एक साइंटिफिक नॉलेज दे करके मॉडर्न एरा जो आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं उससे फेमिलियर करवा करके उन्हें एक ऐसी चीज़ों में फील्ड में एक्सेल करवा सकें जिससे उन्हें आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। Next is our mission. We aim to set the highest standard of excellence and prepare capable and responsible citizens for 21st century. We ensure that students avail latest technological updates to and raising the graph of growth of advancement. We aspire our students
to strive a perfect balance of moral and modern culture, and to be responsible toward social as well as environmental issues. The institution focus on continuous improvement, keeping pace with academic prospect and experimenting with innovative technique to nurture excel at all levels in every field. Now, with great pleasure, I would like to introduce you all with our principal, Dr. Nilesh Kumar Divedi sir, who is the principal of our college, Nand Kishore College of Pharmacy, approved by Pharmacy Council of India and AICTE and affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University and Board of Technical Education, UPBET. now now in this slide here here I would like to introduce you all to our head of the department, that is HOD, Mr. Anuj Dubey sir. Now I would take some time to tell you all about our college. First, as you all know, our college is Nand Kishore College of Pharmacy, Prayagraj, that is NKCP. Established in 2019, is devoted to cause of providing and promoting professional education and research in the field of pharmaceutical sciences. The mission of our institute is to develop a center of excellence. To reach to such end, the institute has equipped with all the necessary facilities, laboratories, and classroom, which are designed according to the compliances limits of AICTE and PCI, as well as BTE and AKTU. The Nand Kishore College of Pharmacy has herbal garden, more than 100 varieties of plant species to provide students to deepen knowledge of of their subject. In addition, an animal house is coming up soon. At NKCP, we prepare students for a professional care, not merely a degree. Before into these are the sorry these are the images of some program held in our institute. As we can see, there is an program of fresher as well as farewell. There is a plantation day on 22nd of October, and education counseling and the celebration of World Pharmacist Day, which is on 25th of September. Now, before introducing you all to our faculties, I would like to take some time so that we can add another students into our meeting. प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए. जिनके माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए. जब आपको कुछ पूछना हो तब आप ऑन कर सकते हैं. माइक बिना ऑन किए भी आप चैट बॉक्स में एक क्वेरीज भेज सकते हैं. थैंक यू. जिसको भी कोई क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए. बाद में जब मीटिंग खत्म होने वाली होगी या प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग उन सारी क्वेरीज को हेल्प करेंगे. ठीक है. थैंक यू. मिस्टर अंकित सिंह, प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए प्लीज.
Now, I would like to continue our presentation. बोल तो रहा हूँ पहले वॉइस वॉइस हो करो वॉइस नहीं रखते Now, Now I would like to continue our presentation and introduce you all to our faculties of Nandkishore College of Pharmacy. First, the Faculty of Pharmacognosy, who is our principal sir, Dr. Nilesh Kumar Dwivedi sir. He has experience of 13 years in the teaching field. Next, the Faculty of Pharmaceutical Chemistry, which is Miss Princy Kesarwani and Miss Samriddhi. Next, the Faculty of Pharmaceutics, Mr. Anuj Dubey sir, who is also the HOD of our department. Next, Mr. Vinay Kumar Singh sir. Now, the Faculty of Pharmacology, Mr. Subhash Chaudhary and Miss Ritika Singh. Faculty of Skill and Personality Development, Miss Vaibhavi Pandey. Our librarian, Mrs. Kirti Pandey ma'am. Our training and placement in charge, Mr. Gangendra Mishra sir. Our lab technician, Mr. Amit Kumar sir. And our office staff are Mr. Shivendra Singh sir and Miss Tanya Nigam ma'am. Now, our pharmaceutical link up. Our pharmaceutical link up is with PG Tech Research Institute Indore. This institute provide training training facilities of high-tech instrument to the student as per pharma norms, and also provide the placement facilities. Here we can see the technical director of PGTRI, that is PG Tech Research Institute, Mr. JC Shah sir, and the director of PG Tech Private Limited and Research Institute, Mr. Ashish Tiwari sir. Mr. JC Shah sir is our guest, but due to some issue, he is not present. He'll he'll join us later. Now, I would like to welcome our today's speaker, Mr. Deepak Parmar sir, from PG Tech Research Institute, Indore. He is currently working at PG Tech Research Institute as lab training in charge with responsibility of providing training on analytical instrument as per pharma norms. He is a former employee of Symbiotic Pharma Lab Private Limited with experience of 3 years as QC analyst. Now, I would like to request Mr. Deepak Parmar sir to enlighten us about pharma sector for their future. Hello. Yes, sir. Uh, okay, am I audible? Yes, sir. To me, you are Okay, audible. ma'am. Thank you, ma'am, for giving me a chance to introduce our students or welcome all students in pharma world. Sir, I would like to request you that, sir, kindly remove your mask so that our student can see you. Okay, okay, okay. So, sir, presentation सर आप रन करोगे कि आप मुझे नेक्स्ट बोल दोगे मैं रन कर दूंगी? हाँ, आप ही रन कर दीजिए, मैम. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर.
ओके सर, मैं स्टूडेंट्स और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बात ध्यान से सुने और प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें। और सर जब कुछ समझाएं, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दें। कोई भी आपको डाउट हो आप प्लीज़ उसे चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दें। बाद में सर जब अपना लेक्चर डिलीवर कर लेंगे फिर सर वो क्वेरीज के आंसर दे देंगे। रविशंकर, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। रविशंकर, थैंक यू। सर आप अब अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ सर। सर जस्ट टेल मी व्हेन टू चेंज द स्लाइड। दीपक सर। हेलो मैम। यस सर। सर जस्ट प्लीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्लाइड को फुल वे में कर दीजिए हाँ ताकि सर मैं स्टूडेंट्स को स्लाइड्स देख सकें। ओके सर श्योर सर। ओके, तो हम पीजी टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर, जहाँ पे हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग। और अभी हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं नंद किशोर इंस्टीट्यूट्स और नंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ, जहाँ पे वहाँ के कैंडिडेट्स जो आप स्टूडेंट्स लोग हैं जो वहाँ पे 4 साल अपना डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद फार्मा इंडस्ट्रीज में यदि अपने जॉब और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एक आज हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन भी हो गया पीजीटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर एंड नंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी का। और मैं हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर सर हैं जयसी शाह सर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। शाह सर ने हमारा जो उनका करियर है वो स्टार्ट किया था फार्मा इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल के साथ। जयश्री शाह सर यूएसएफडीए अप्रूव्ड केमिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने अपना करियर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और कारपोरेटेड क्वालिटी एश्योरेंस के साथ लगभग 35 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट करके लास्टली उन्होंने सिम्बायोटेक फार्मा लैब से हम कंप्लीट किया, रिटायरमेंट हो चुके हैं। और उसके बाद शाह सर का एक मोटिव था कि जो स्टूडेंट्स बी फार्मा और एम फार्मा डी फार्मा कंप्लीटेड करके फार्मा इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इन फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके। इसी पर्पज से उन्होंने पीजीटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टार्ट किया, जो कि नवंबर 2020 से हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था। अभी से कंटिन्यू अभी हम कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और जॉब प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ नंद किशोर इंस्टीट्यूट, नंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था कि फार्मा सेक्टर क्या है और फार्मा सेक्टर में कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। हाँ, यस। तो मल्टीपल चॉइस ऑफ करियर है हमारे पास। जहाँ पे हम फार्मा इंडस्ट्रीज में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। और यदि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हम रिसर्च पर्पस की बात करें तो रिसर्च में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्मा केमिस्ट्री। और इसके अलावा भी हमारे जो फार्मा इंडस्ट्रीज में अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स और डेवलपमेंट। तो इस टाइप से वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ होती है, जिसमें हम वेरियस टाइप से जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट, ड्रग कंट्रोलर, साइंटिफिक असिस्टेंट, केमिस्ट एंड बोटनिस्ट और फार्मासिस्ट। इस टाइप से वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमें जॉब प्रोवाइड होती है। इसके अलावा हम यदि बात करें कि हम सेल्फ से क्या कर सकते हैं तो सेल्फ का मैं बताता हूँ। रिटेल शॉप, होलसेल ड्रग स्टोर, जो आपने देखी होगा मेडिकल शॉप्स वगैरह। और इसी टाइप से हम बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अलावा मार्केटिंग की। तो हम मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव,
टेरिटरी मैनेजर, रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर, इस टाइप से बहुत सारे वेरियस टाइप से पोस्ट होती है मार्केटिंग सेक्टर में। और फार्मासिस्ट की बात करें तो रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इस टाइप से वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब हम हेलो। हेलो। आई एम ऑडेबल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now. Yes, sir. ओके, तो हम ये वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं जहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं। एक चीज बहुत बेनिफिट है फार्मा इंडस्ट्रीज का, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जॉब सिक्योरिटी है, इनकम सिक्योरिटी है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण So please unmute yourself. बार बार ये अनम्यूट क्यों हो रहा है? हेलो। Yes, sir. हाँ, ओके, आई एम ऑडेबल नाउ। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। Yes, sir. तो जो हमारी जब बात करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फार्मा और बी फार्मा, डी फार्मा, व्हाट इज द इनकम सिक्योरिटी। तो अभी जब हम बात करते हैं कोविड पेंडेमिक की, कोविड पेंडेमिक में बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब की बात करें तो जॉब बहुत सारे लोगों की चली गई थी। लेकिन हम यदि फार्मा इंडस्ट्रीज की बात करें और फार्मा सेक्टर की बात करें तो हमारे हर सेक्टर में कंटिन्यू वैकेंसीज थी उस समय भी। मतलब कि बहुत सारे जो केमिस्ट थे, बहुत सारे जो लोग एनालिस्ट और फार्मासिस्ट थे, वो लोग जॉब छोड़ करके घर जा रहे थे, तो उनको कंटिन्यू बुलाया जा रहा था। और मतलब ए लॉट ऑफ वैकेंसीज थी मतलब। तो फार्मा सेक्टर ही इस टाइप का एक सेक्टर है जहाँ पे हम कंटिन्यू जॉब और इनकम सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। और हाँ, हेलो। मैम, नेक्स्ट स्लाइड। Sir, I'm showing you the last type, which you have to explain. एक्चुअली मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप क्या शो कर सकते हैं स्लाइड फुल उसमें स्क्रीन सर में? एक सेकेंड, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओके। So now my screen is visible. हाँ, स्क्रीन इज विजिबल बट प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल मैम। So now, हाँ, यस, नाउ। so wait for a second. ओके मैम, बैक कर सकते हैं आप, 2 स्लाइड बैक कर सकते हैं जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पीजीटीआरआई एंड आवर मिशन। ओके, थैंक यू मैम। एक्चुअली जो पीजीटीआरआई है, हमारा जो मिशन था वो मिशन था कि हम जो इंडस्ट्रीज हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट है, दोनों के बीच में जो गैप है, यानी टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का जो गैप है, उसको फिलफिल करना
एक्चुअली क्या है, बहुत सारे अब मैं एक्चुअली यूपी की तो बात नहीं करना चाहता, यूपी का मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन एमपी की बात करूंगा तो एमपी के जो फार्मेसी कॉलेज हैं वहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी। यानी कि हमारे जो फैकल्टीज होते हैं और जो कॉलेजेस होते हैं वो अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल सर से और वहाँ पे जो जितने भी फैकल्टीज हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यू प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करके ही और थ्योरेटिकल डेवलपमेंट करके ही उनको आप डिग्री और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाएं। और मुझे उम्मीद है, और मैंने जैसा नीलेश सर से कंटिन्यू बात होती रहती है हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि नंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी जहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो यदि हम थ्योरेटिकल की बात करें तो अधिकतर कैंडिडेट्स होते हैं जिनको केवल डिग्री से मतलब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो केवल डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर वो जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है और उनको बहुत कम थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत कम ही हो पाता है और इस वजह से वो अपने इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसी पर्पज से हमने जो हमारे एमपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे क्या लगभग मैं तो बात करना चाहूँगा कि 80% कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे केवल डिग्री प्रोवाइड करने का ही काम किया जाता है। तो उन कॉलेजेस के लिए हमने यहाँ पे एक उनको स्लॉट प्रोवाइड किया है ताकि वो आकर के यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग में पार्ट्स लेकर के और सारे इक्विपमेंट्स पर ट्रेनिंग देते हैं हम, और फार्मा इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यदि इस ट्रेनिंग से और आनंद किशोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सभी स्टूडेंट्स आप में से कोई भी क्वेरी हो फार्मा सेक्टर के रिलेटेड, कुछ पूछना हो कि फार्मा सेक्टर में क्या और कुछ आपको जानना हो इसके अलावा, तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं अपना स्पीकर ऑन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मैम, माय साइड कंप्लीट, इफ यू कैन कंटिन्यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर क्या मैं जैसे डिप्लोमा कर रहा हूँ डी फार्मा, तो सर उसके मैं किसी जब कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट, क्या मैं किसी में से जैसे कोई ब्रांड या कोई कंपनी की दवा हो इसको एजेंसी में ले सकता हूँ कि नहीं? एक्चुअली क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपको टेकअप कर सकती है। जी सर। एक्चुअली क्या साउंड कुछ ज़्यादा आ रहा है आउटसाइड, आप प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमें एक स्टार्टअप दे सकती है डी फार्मा कैंडिडेट्स को, और डी फार्मा कैंडिडेट काफी मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन एरिया में बहुत ज्यादा डी फार्मा का स्कोप है। तो आप प्रोडक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। और आफ्टर 2 to 3 year एक्सपीरियंस आपका लगभग मैं बोल सकता हूँ कि सारी इंडस्ट्रीज के लिए आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज का वे जो होगा खुला रहेगा। सर एक्सपीरियंस सर कैसे, मतलब कहाँ मैं कहीं किसी ऑथराइज डीलर पे या कहाँ से एक्सपीरियंस करेंगे तो हो जाएगा सर? हाँ, एक्चुअली जहाँ कुछ कंपनीज होती है जो कि प्रोवाइड करती है आपको डी फार्मा को, और डी फार्मा में प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल्स में लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से यदि जो कंपनियां ले रही हैं वहाँ पे हम करीब 1 या 2 साल जॉब करके और हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब हमारे हर कंपनियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। अदर कोई क्वेश्चन है कोई स्टूडेंट्स के?
मिस समृद्धि मैम। Hello. Yes, sir. You can continue, ma'am. Okay, thank you, sir. Thank you for your valuable insight, sir. Sir, we wish to continue this further as as we are going to start a new batch of fresh batch of beef farm. So we can continue this collaboration with continue this collaboration in future also. तो मैं बोलना चाहूँगी कि कोई बी फार्म स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी हो दीपक परमार सर से तो वो कंटिन्यू कर पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये डी फार्म के लिए है दैट ओनली डी फार्म स्टूडेंट्स आर going to ask the questions. If B farm student have any query can ask, he or she may ask. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जिसे सर ने बताया, दीपक परमार सर ने बताया। सर का एक्सपीरियंस हम लोगों से थोड़ा अलग है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, डी फार्म में मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लिमिटेड स्कोप है। डी फार्म का भी स्कोप बहुत वास्ट है। बट एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद आप लोगों को बी फार्म में बैचलर्स में लेटरल एंट्री मिल सकती है। एज इन आपने 2 साल का डिप्लोमा उसके थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हैं पीसीआई में। बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करके आप बी फार्म में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल की डिप्लोमा डिग्री है तो आपको सीधे सेकेंड ईयर बी फार्म में एडमिशन मिलता है, जिससे कि आप जो बेनिफिट्स फार्मा फील्ड के नहीं उठा पा रहे हैं वो आप उठा सकते हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा के बाद रजिस्टर करा के आपका लाइसेंस से जो भी आपका वर्क होता है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और फर्दर आप बैचलर्स में एडमिशन लेके जो स्कोप आपका डी फार्म करने के बाद लिमिटेड होता है उस लिमिटेशंस को आप हटा सकते हैं। स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं सर ने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल। आप देखिए फार्मेसी लिखी हुई है बीच में, फार्मेसी फार्मेसी के नीचे लिखा हुआ है डिप्लोमा, फिर बैचलर्स, देन मास्टर्स, देन डॉक्टरेट। ठीक, तो डिप्लोमा आपने कर लिया, आप डिप्लोमा के बाद बैचलर्स में भी आ सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स में आ सकते हैं तो आपके पास एकेडमिक के लिए 2 रास्ते और खुल जाते हैं, जो कि होगा मास्टर्स और पीएचडी। मास्टर्स के लिए आप लोग जीपैट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जीपैट एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसको क्रैक करने के बाद आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलती है और आप बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जीपैट की प्रिपरेशन आप अपने आप से कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ नहीं आता है, जितना आप लोगों ने डिप्लोमा या बैचलर्स में पढ़ेंगे आप, अगर आप ऑप्ट करते हैं फर्दर, उसी का सिलेबस जीपैट में इंक्लूडेड होता है। और जीपैट में आपको मंथली 12,400 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, नॉट ईयरली, मंथली। आई एम टेलिंग यू सो दैट आप एक इंडिपेंडेंट होकर अपना मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। डिप्लोमा के बाद भी नो डाउट खुलते हैं, बट कुछ फील्ड्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे कि एक आप बॉक्स देख रहे होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स का और एक बॉक्स देख रहे होंगे एकेडमिक्स का। सर इन दो चीज़ों में और यहाँ पे आप देख रहे होंगे R&D में JRF SRF का, इन सारी चीज़ों में आप लोगों को मास्टर्स और डॉक्टरेट रिक्वायर्ड होता है। वो फिर आपको पॉलिश्ड मटेरियल समझते हैं तो वो आपको लेने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, भले ही आपका बैकग्राउंड डिप्लोमा का हो। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फिर बहुत स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना माइंड बहुत खुला रखना पड़ेगा एडमिशन लेते वक्त। अब जैसे कि मैंने बताया एकेडमिक्स के लिए,
अब कहीं पे भी आप प्रोफेसर्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने पीएचडी कर दिया है, तो पीएचडी आप बैचलर्स मास्टर्स के बाद ही कर सकते हैं। और पीएचडी करने के लिए भी आप लोगों को नेट क्वालिफाई आप कर सकते हैं। आप नेट क्वालिफाई अगर करते हैं अच्छे से प्रिपेयर करके, तो उसमें भी आपको 35 से 40 हज़ार तक की आपको स्कॉलरशिप मिलती है मंथली। मैं कोई भी स्कॉलरशिप मैं बता रही हूँ आपको, चाहे वो जीपैट की होगी या नेट की होगी, वो ईयरली नहीं होती है, वो स्कॉलरशिप आपको मंथली प्रोवाइड कराती है। क्योंकि आप जब मास्टर्स और पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑब्वियसली बहुत महंगी चीज़ें होती है। एक छोटे छोटे केमिकल्स लाखों में आते हैं, कुछ मिलीग्राम हम टैबलेट लेते हैं, 100 रुपए के 10 टैबलेट आ गई, 10 रुपए की 5 टैबलेट आ गई, लेकिन वो बस 1 मिलीग्राम की मैं बात कर रही हूँ, वो कंपाउंड्स लाखों में आते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप फर्दर उसमें जा सकें। तो आप देख सकते हैं, मैं लाइन वाइज टर्म्स आपको बताऊंगी। देखिए, जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं वो उसी ऑर्डर में है। टॉप ऑर्डर में हमेशा गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक। प्राइमरी आप क्या चाहते हो, फार्मासिस्ट। मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी आपको बहुत आपको कंपटीशन मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको पता है कि बस फार्मेसी के फील्ड के स्टूडेंट नहीं होते हैं, लाइफ साइंसेज के जितने भी स्टूडेंट थे, तो भले ही वो बीएससी और एमएससी के होते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग में आपको वहाँ पे भी कंपटीशन मिलता है। फिर नीचे आ जाइए फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री में आपको कंपटीशन मिलता है, पर थोड़ा कम कंपटीशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी के भी स्टूडेंट्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। देन आरएनडी में आ जाइए। अगेन, आप कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं देख रहे हैं जिसमें कि आपको कंपटीशन ना मिले। कुछ तो कंपटीशन होता है जो इंट्रा होता है, और कुछ होता है इंटर होता है। इंटर एज इन कि दो फील्ड के बीच में, जैसे फार्मेसी फील्ड होगी और बीएससी की फील्ड होगी, ऐसे कंपटीशन आपको सारे फील्ड्स में मिलेंगे, क्योंकि वो भी बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो वो आगे आपको बहुत कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप इस कोर्स का, और आप हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, तो आप कोर्स का पूरे अच्छे से फ़ायदा उठाइए, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटीज़ हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप अपना बेस्ट दीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है स्लाइड में से, जो मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे है, कोई भी वर्ड जो आपको कुछ भी पूछना है किसी भी फील्ड के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। Thank you all. Now I would like to request HOD of Nand Kishore College of Pharmacy, Mr. Anuj Dubey sir, to raise a vote of thanks to all. Thank you, Samriddhi ma'am. Am I audible? A, a very good afternoon to Honorable Chairman Sir, Mr. Bhan Singh Sir, Vice Chairman Sir, Dr. Anuj Singh Sir, Authority Mr. Sunil Tiwari Sir, Mr. Bipin Singh Sir, our Principal Dr. Nilesh Kumar Duvedi Sir, our today's guest Dr. J.C. Shah, Director of PG Tech Research Institute Indore, and Speaker Mr. Deepak Parmar from PG Tech, fellow faculty members and ambitious students. Dear students,
I heartily welcome to all of you, Diploma first year in Nand Kishore College of Pharmacy. As I am Anuj Dubey, HOD of Department of Nand Kishore College of Pharmacy, I thank you all for your valuable presence in this induction program of D Form batch. What happened? D Form batch 2021 to 2023 and welcome our first year D Form students on the behalf of Nand Kishore College of Pharmacy and the Nand Kishore College of Group. I would like extend my warm greeting thanks to Mr. Deepak Parmar sir for such valuable insight which will help our student to excel in pharma sector. Thank you to all. And dear students, I would from tomorrow your classes will be started at sharp 10 a.m. on offline mode. Thank you, Deepak sir. थैंक यू सर। लास्टली मैं एक बात बोलना चाह रहा था जी सर। सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के बेनिफिट के लिए बोलना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, हम बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी सारे चीज़ों करने के बाद हम कोई सी ड्रग का रिसर्च करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं और फाइनली ऑल ऑफ आफ्टर उसको हम मार्केट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक शॉप पर हम उसको सेल करते हैं एक्चुअली। बट जो हमारा फाइनल टारगेट होता है किसी भी हमने ड्रग को रिसर्च किया, हमें उस ड्रग के बारे में मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें नॉलेज हैं, तो लेकिन फाइनली हम उस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, है ना। एक एमबीबीएस डॉक्टर उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, तो ये हमारे इंडिया की थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि हम उस ड्रग को रिसर्च करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उस ड्रग की एनालिसिस करते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं, उसके बाद भी हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो वो इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली हम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को उस ड्रग का इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। कारण ये है होता है कि हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स और जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर एक्चुअली बी फार्मा और एम फार्मा के कैंडिडेट्स ना बैठते हुए ऐसे लोग बैठते हैं जिन लोगों को हमने डिग्री दे रखी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा माहौल डेवलप हो और ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कि एक मेडिकल शॉप्स पर या फिर फार्मेसी पर बैठे हों तो उनको पूरा नॉलेज हो। तो हम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर जब आपका डिग्री कंप्लीट हो, आप एक ऐसी पोस्ट पर आएँ तो इन फ्यूचर आप आपकी डिग्री को एज ए रेंट पर ना दें, क्योंकि ये एक बहुत मतलब बेकार रास्ते पर हमारा फार्मा सेक्टर जा रहा है, जिसमें हम डेवलपमेंट की जगह और पीछे जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी सभी स्टूडेंट्स को, और सर इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम धीरे धीरे डेवलप करते हुए एक ऐसा माहौल बनाएं इंडिया में भी जो ऑल ओवर यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में है। Yes, sir. Very thank you for this grateful knowledge. और सभी बच्चों का, और हम लोग भी अपने ही कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को इसी तरीके से ट्रीट आउट करेंगे और उसी तरीके से उनको नॉलेज ग्रेड कराएंगे कि ताकि वो अपना सेल्फ डिपेंडेबल बने हमारे बच्चे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो अपने खुद की डेवलपमेंट और स्किल्स जो हैं उनको क्रिएट करें। और इस तरीके की जिस तरीके का सर ने आपने अभी बताया है कि जो हमारे लाइसेंस हैं वो किसी अदर को दे करके और उनके थ्रू चलाया जा रहा है, तो वो भी ना हो, आप सेल्फ ही उसको हैंडल कर सकें और खुद इतना सेल्फ एक्टिव रहें कि सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करें। थैंक यू सर। थैंक यू।